बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस आयशा आज आपको बुक 2 का जो हम पार्ट 2 में से हीरोज़ पढ़ रहे हैं, आज हम थर्ड हीरो पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर ये 13 है और हीरो ये तीसरा है। इनका नाम है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की दरियाफ़्त की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरी दुनिया में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसको डिस्कवर किया, जो कि एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और इसमें और कितने और लोग भी इन्वॉल्व हैं। और इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए इसको हम पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो। इसके फ़र्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि राइटर जो हैं पैट्रिक प्रिंगल, इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अमली मैदान में दाखिल होने से पहले उसकी तरक्की का ज़िक्र किया है, जो मेडिसिन की दुनिया में मुख्तलिफ़ साइंसदानों की तहकीक की वजह से हो चुकी थी। दूसरे हिस्से में हम फ्लेमिंग की बर्थ से लेकर उनके प्रैक्टिकल वाली स्टेज तक आने तक, डॉक्टर बनने तक का सफ़र इसमें बयान किया गया है। तीसरे हिस्से में फ्लेमिंग का बतौर डॉक्टर अमली ज़िंदगी में शामिल होना और पहली जंग अज़ीम में इसका ख़िदमात सर अंजाम देना, और इसके बाद इसकी की गई तहकीकात जो हैं वो लाइसोज़ाइम की दरियाफ़्त का ज़िक्र है। इसके फोर्थ पार्ट में फ्लेमिंग के नए अज़्म के साथ पेनिसिलिन की दरियाफ़्त की कोशिशों का बयान है। फिफ्थ पार्ट में पेनिसिलिन को अमली तौर पर कारआमद बनाने की गर्ज से मुख्तलिफ़ टीमों की तरफ से की गई काविशों का भी अहाता किया गया है। हम इसमें देखेंगे ऑक्सफोर्ड टीम का इसमें ज़िक्र किया गया है। इसका जो सिक्स पार्ट है, इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिलने वाले इनामात और इज़्ज़त का तज़किरा किया गया है और ये भी बताया गया है कि किस तरह से पेनिसिलिन की दरियाफ़्त से मेडिसिन की दुनिया में इनक़लाब बर्पा हो गया है और इंसानी जान को दरपेश ख़तरात पर काबू पाने के लिए किस तरह इस तरह की और भी बहुत सी अद्वियात जो हैं वो सामने आई हैं। अब इसके मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, या इस चैप्टर का ब्रीफ सर्वे हम देखते हैं। फ्लेमिंग्स अचीवमेंट वाज रिमार्केबल। लाइक पैस्चर, ही ओपनड अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस. He laid the foundation of the antibiotic. He inspired others to seek new antibiotics. In this way came new drugs for the better control of disease. This discovery has shown a new way to the scientists of the world. No doubt, Sir Alexander Fleming is no more in this world, but his work will keep him alive in the hearts of the people. Now we'll see his early life, his birthplace, his early life. Alexander Fleming was born on a farm near Darwell on August 6, 1881. He was the youngest of a family of 8. His father died when he was only 7 years old. At 10, he went to Darwell School. When he was 14 years old, he went to London, and for the next 2 years he studied at the Regent Street Polytechnic. The 3 of his brothers were already in London when he arrived there. One was an eye specialist and 2 brothers were opticians. One of his sisters was married to a doctor and the other to a veterinary surgeon. So the Fleming family was becoming a medical family. After leaving the Polytechnic, Alexander Fleming could not continue his studies because of financial difficulty. Then he worked as a clerk in a shipping firm in Leadenhall Street for 4 years. When he was 20 years old, he received a share in a legacy and joined St. Mary's Medical School for medical profession. After completing his education, Fleming worked in Wright's laboratory for 8 years.
There he worked on bacteria. He thought that the best way to control diseases was to strengthen the white blood cells of the body. He wanted to find some means that might destroy germs but not the white cells. In 1914, he joined the Royal Army Medical Corps (RAMC). There he came face to face with the main problem of the First World War. In this war, there was a large number of injured persons with infected wounds. The method of treatment that was in practice at that time was the antiseptic method. Robina M. It was not successful because it destroyed the white cells of the body also. In 1918, the war ended, but Fleming was still trying to find out any way to help the white blood cells in killing germs. In 1922, he was examining his own nasal secretions. He found that it contained a natural antiseptic prepared by the body. It destroyed the germs but did not harm the white cells. He called it lysozyme. It was better than carbolic acid and iodine, but it could not be used practically for the treatment of disease. Anyhow, its importance was great because it proved the forerunner of penicillin. In 1928, Fleming was appointed professor of bacteriology in the University of London, and in the same year he hit on penicillin. This discovery was due to a stroke of good fortune. Accidentally, there came a mold spore on one of the culture plates in the laboratory. Fleming observed it and found that it contained a substance that killed germs. This natural antiseptic was far better than lysozyme. He called it penicillin. It was a wonder drug because it was 3 times as strong as carbolic acid, and above all, it did not destroy the white cells. This method of treatment of infectious disease was more effective and secure than the chemical antiseptic method. Fleming was knighted in 1944 and awarded the Nobel Prize for Medicine in 1945. The whole world showered him with honors, but he was so humble that he said that such gratitude was not due to him. He used to say, "Nature makes penicillin. I just found it." So we see that Fleming, like Pasteur, opened up a whole world of science. He died in 1955 at the age of 73. His work will never die. So this was the information about the hero Sir Alexander Fleming कि किस तरह से उन्होंने साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया पेनिसिलिन की दरियाफ्त से, और हमें एक एंटीबायोटिक मिल गया कि इससे पहले जो है मरीज़ किस तरह से ज़ख़्म उनके ठीक नहीं होते थे और किस तरह से वो मौत के मुंह में चले जाते थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ये बहुत बड़ा कारनामा है और कौम हमेशा उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकती और उनकी शुक्रगुज़ार रहेगी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स जो हैं आपकी बुक में पेज नंबर ये है 63 पर इसके जो नोट्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स वो आपने याद करने हैं, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम इस वक्त देखेंगे। पहला क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स एंड व्हाट इज़ द एंटीसेप्टिक मेथड। इसका आंसर है जरासीम कश अद्वियात क्या है और इसका जरासीम कश तरीक़ाकार क्या है। इसका आंसर है केमिकल्स यूज्ड टू किल जर्म्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक सच एज कार्बोलिक एसिड। कि कार्बोलिक एसिड जैसे केमिकल जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंटीसेप्टिक इनको कहा जाता है। दिस मेथड ऑफ यूजिंग केमिकल्स टू किल जर्म्स इज़ कॉल्ड एंटीसेप्टिक मेथड। और जरासीम मारने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करने का ये तरीका है इसको एंटीसेप्टिक
मेथड कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। व्हाट वाज चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड? ये एंटीसेप्टिक मेथड जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले इस्तेमाल किया जाता था, उसका क्या नक्स था? उसका नक्स था कि ये जरासीम, ये केमिकल जरासीमों को मारने के साथ साथ जिस्म के अंदर जो वाइट सेल्स, सफ़ेद खलिए होते थे, उनको भी तबाह कर देता था। द चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड वाज दैट द केमिकल दैट किल्ड द जर्म्स आल्सो डिस्ट्रॉयड द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3, what part is played by the white cells on the blood of a human body? इंसानी जिस्म में खून के सफ़ेद जो जरासीमें हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं? द आंसर इज़ द वाइट cells also called leukocytes in blood are natural defense organs against disease. When the germs enter the body, white blood cells attack them. तो जिसमें जो ये ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बीमारी के ख़िलाफ़ हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, दिफ़ा करते हैं। जैसे ही जरासीम जिसमें दाखिल होते हैं, वाइट ब्लड सेल जो है उन पर अटैक करते हैं। तो ये जो एंटीसेप्टिक मेथड इस्तेमाल किया जाता था, उसके साथ जरासीमों के साथ साथ ये वाइट सेल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते थे। तो ये इस तरह से ये कोई कामयाब इलाज नहीं था बीमारी के ख़िलाफ़। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव एन अकाउंट ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताना है। फ्लेमिंग वाज बोर्न इन अगस्त 6, 1881. His father died when he was 7 years old. At 10, he went to the Darwell School. He joined the Glamrock Academy at 12. Then he went to England and studied at the Regent Street Polytechnic. At 16, he took a job as a clerk in a shipping firm. At 20, he received a share in a relative's legacy. Then he joined the St. Mary's School to become a doctor. He worked in the Wright's laboratory for 8 years. Question number 5, describe how Fleming discovered penicillin. Very important question, कि किस तरह से फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को दरियाफ्त किया। Fleming was making some experiments. He was growing colonies of germs on the culture plate spread with agar. As he opened a plate to study, a mold spore came flying through the window and dropped on the culture plate. This thing began to grow. The germs began to disappear, and he named it penicillin. कि फ्लेमिंग कुछ तजर्बात कर रहा था और वो जरासीमों की पैदाइश कर रहा था। जो ही इसने इस मुताले के लिए एक प्लेट खोली तो खिड़की में से कोई चीज़ उड़ती हुई आई और उसकी कल्चर प्लेट पर गिर गई। ये चीज़ बढ़ने लगी, जरासीम गायब होना शुरू हो गए। इस तरह से उसको एक आइडिया मिला, इस तरह, और इसने इसको पेनिसिलिन का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन वट रिस्पेक्ट इज़ पेनिसिलिन बेटर दैन द केमिकल एंटीसेप्टिक? किस तरह से पेनिसिलिन एंटीसेप्टिक मेथड जो था या केमियाई तरीका जो जरासीम मारने का जो दूसरी अद्वियात थी, किस तरह से ये पेनिसिलिन उससे बेहतर था? इसका आंसर है, कार्बोलिक एसिड एंड आयोडीन हार्म द वाइट सेल्स ऑफ ब्लड. दे डिड मोर हार्म दैन गुड, बट पेनिसिलिन इज़ हार्मलेस टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. ये इसमें फ़र्क था कि कार्बोलिक एसिड, आयोडीन जो है ये जिस्म में मौजूद सफ़ेद खलियों को भी नुकसान पहुंचाते थे। फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता था, जबकि पेनिसिलिन जो है वो इस तरह से हार्मलेस था वाइट सेल्स के लिए, और इसने सिर्फ जरासीमों को मारा, और जिसमें जो ये डिफेंडर्स थे, डिफेंडिंग ऑर्गन्स थे, वाइट ब्लड सेल जो हैं उनको इसने ख़त्म नहीं किया. रादर इट स्ट्रेंथन्स एंड एड्स द सेल्स इन देयर फाइट अगेंस्ट जर्म्स, बल्कि इससे और भी ज़्यादा वाइट सेल्स को स्ट्रेंथन मिली. सो इट वाज हील्ड एज अ वंडर ड्रग. तो इस तरह से ये एक वंडर हैरान कुन दवा थी और इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम? इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? एट ऑक्सफोर्ड अ टीम हेडेड by Professor Flore and Chain worked to concentrate penicillin. It comprised trained
chemists and bacteriologists. They had all the equipment that Fleming lacked. They succeeded in concentrating penicillin. ऑक्सफोर्ड टीम का भी बड़ा अहम किरदार है। प्रोफेसर फ्लोरे जिसको हेड कर रहे थे और चेन इसको हेड कर रहे थे और उन्होंने पेनिसिलिन को कशीद करने का काम किया। ये तरबियत याफ्ता इसमें कीमियादान थे और माहिरीन जरसूमियात भी इसमें शामिल थे, तो इनके पास वो सारा सामान मौजूद था जो फ्लेमिंग के पास नहीं था। इस तरह से वो पेनिसिलिन को कशीद करने में, कंसंट्रेट करने में कामयाब हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड दे मेक पेनिसिलिन मोर इफ़ेक्टिव? They adopted new methods of manufacturing and prepared a concentration of penicillin. In this way, they made penicillin more effective for the treatment purposes. इस तरह से ये ऑक्सफोर्ड टीम ने जो कंसंट्रेशन के बाद पेनिसिलिन बनाई वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी बनिस्बत अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के, क्योंकि जो इनके पास तरीक़ाकार था वो फ्लेमिंग के पास मौजूद नहीं था। इस तरह उन्होंने पेनिसिलिन को इलाज के मकसद के लिए बेहतर अंदाज में ज़्यादा मौसर उसको बना दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ नोट ऑन पेनिसिलिन एज अ वंडर ड्रग। किस तरह से पेनिसिलिन बतौर एक हैरत अंगेज़ दवा थी, इस पर हम नोट लिखना है। इसका आंसर है द इफ़ेक्ट ऑफ पेनिसिलिन ऑन द जर्म्स वाज about 3 times stronger than that of a carbolic acid. It had no toxic effect on the white blood cells of the body, so it was called a wonder drug. कि जरासीमों पर जो पेनिसिलिन का असर कार्बोलिक एसिड के निस्बत ज़्यादा ताकतवर था। और दूसरा ये कि इससे जिसमें मौजूद जो सफ़ेद खलिए थे उन पे कोई जहरीला असर नहीं होता था, तो इस तरह से ये दवा ज़्यादा मुफीद थी बनिस्बत कार्बोलिक एसिड के, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी? द आंसर इज़ नो, फ्लेमिंग वाज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। इसमें आपने नो के बाद सेंटेंस में भी मेंशन करना है, नो फ्लेमिंग वाज नॉट। ठीक है, अगर आप मोस्टली स्टूडेंट्स लिखते हैं नो फ्लेमिंग वाज प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, तो आपका आंसर गलत, सेंस गलत हो जाती है। फिर सुन ले एक दफ़ा, नो फ्लेमिंग वाज नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, ही रिमेन्ड हम्बल एज यूजुअल, पीपल शॉवर्ड ऑनर्स ऑन हिम बट ही प्रोटेस्टेड, ही सेड that he had not done anything, nature makes penicillin, he had just found it. इतना वो हम्बल था कि उसने कहा कि नहीं, ये तो फितरत में मौजूद थी, उसने इसको पा लिया है, डिस्कवर किया है। नंबर 11, why couldn't penicillin have been discovered in the research laboratories of America? कि अमेरिका की जो साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन लेबॉर्ट्रीज़ थी वहाँ पर पेनिसिलिन क्यों नहीं डिस्कवर हुई? The answer is the American laboratories were airtight and sterilized. Therefore, penicillin could not be discovered there. It was because their culture plates were not dirty. There was no way for mold spore to come in and drop on the culture plate. वो इतनी ज़्यादा airtight थी, वहाँ पर गंदगी या कोई इस तरह से बाहर से कोई फफूंदी वगैरह आने का तस्वुर ही नहीं था, लिहाजा वहाँ पर ये डिस्कवर नहीं हो सकती थी। लास्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स अचीवमेंट पेव्ड द वे फॉर अदर डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड, व्हाट आर दे? किस तरह से फ्लेमिंग के कारनामे ने मेडिकल के मैदान में दूसरी दरियाफ्तों के लिए रास्ता हमवार किया? आंसर इज़ फ्लेमिंग्स अचीवमेंट स्टिमुलेटेड अदर पीपल टू वर्क, people discovered new drugs made by nature. The best among them is streptomycin. Fleming himself considered it the most important result of his work. तो फ्लेमिंग इस तरह से इसके बाद के आने वाले जो हैं जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, फ्लेमिंग के कारनामे ने दूसरे लोगों को भी तहरीक दी, मुतहर्रक किया और उन्होंने इस मैदान में साइंस के फील्ड में और भी ज़्यादा नई नई अद्वियात दरियाफ़्त की। उसमें से एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है
और फ्लेमिंग बज़ात ख़ुद इसको अपने काम का अहम तरीन नतीजा ख्याल करता है कि वो उसने इब्तदा की थी और बाद में आने वालों ने इसमें और भी ज़्यादा अच्छा काम किया और आज हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। तो हम इस तरह से इनके शुक्रगुज़ार हैं कि किस तरह से साइंस के मैदान में इस तरह के हीरोज़ ने बहुत बड़े अचीवमेंट्स करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारी ज़िंदगियों को महफूज किया है। यहाँ चैप्टर हमारा क्लोज़ हो गया है। इसको आप पढ़ेंगे, इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी आप याद करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके मीनिंग्स आपने याद करने हैं। एडिशनल क्वेश्चंस को मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि ज़रूर देखें, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पास्ट पेपर्स अगर आपके पास हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिहाजा जो पास्ट पेपर में एटलीस्ट जो एडिशनल में से आए हुए हैं कम से कम आप उन्हें भी ज़रूर याद कर लें। इसके साथ मैंने आपको ऐसे राइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसके रूल्स बताए थे, उसके फॉर्मेट बताया था और फिर आपको एक ऐसे भी दिया था माय हीरो इन हिस्ट्री। तो आपने यकीनन वो याद कर लिया होगा। इस वक्त आप इस वीक में आप जो ऐसे याद करेंगे वो है माय एम इन लाइफ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में का मकसद क्या है, मेरा एम्बिशन क्या है, व्हाट आई वांट टू बी, फ्यूचर प्लान जो है इसमें माय प्रोफेशन, या आप क्या चॉइस है आपकी, इस तरह से कोई भी इस हवाले से आपको ऐसे आता है तो आप माय एम इन लाइफ जो है वो याद कर लें और फिर आप जो आप बनना चाहते हैं या आपका जो एम है आपके जहन में जो है आप उसको उसी फॉर्मेट के मुताबिक कि आप मैंने किस तरह से इंट्रोडक्शन आपने बताना है, उसका मिड कैसे करना है, उसका एंड कैसे करना है, उसी उसूल को सामने रखते हुए आपने ये सेकंड ऐसे भी साथ याद कर लेना है। तब इंशाल्लाह फिर आपके साथ अब नेक्स्ट जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी फिर हम दोबारा प्रोज़ की तरफ जाएंगे और उसका हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।